Good morning, students. Welcome to the science class. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 5 of our science syllabus, that is coal and petroleum. In this chapter we will discuss about resources, natural resources, and man-made resources. After that we will discuss about fossil fuels, coal, petroleum and natural gas. We will study their properties. We will also study how they are formed, and their uses. So students, let's start our chapter coal and petroleum. Now the resources. We know that the resources that we use in our everyday life are either present in nature or are man-made. Okay, and what is resource? Resource is anything that is used in the welfare of human being. So natural resources are the resources. So resources are of two types: natural resources and man-made resources. Okay, there are two types of resources. Now natural resources are the resources that we get from nature, like air, water, sunlight, soil, minerals, forest, wildlife, etc. Okay, so these are the resources which we get from nature. Now man-made resources, you know that man-made resources are the resources which are made by men, such as plastic, glass, rayon, synthetic fibers, rubber, etc. Synthetic rubber, etc. These are the man-made resources. Now types of natural resources. There are two main types of natural resources. They are inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. Now inexhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources are those resources which are present in unlimited amount in nature and cannot be exhausted by human activities such as sunlight, air, water. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर में बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर, वाटर, दीज ऑल आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नाउ exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources are those resources which are present in limited amount in nature and can be exhausted by human activities. So those resources which are present in limited quantity in nature and can be exhausted by human activity are called exhaustible natural resources. ऐसे resources जो कि नेचर में कम मात्रा में प्रेजेंट हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनको हम कहेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जांपल्स फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एग्जॉस्टेबल। ये सब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। 3 रिसोर्सेज के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में। Now fossil fuels. Fossil fuels are the fuels which are formed from dead remains of organisms that lived millions of years ago. Okay, fossil fuels. What are fossil fuels? Fossil fuels are the fuels which are formed from the dead remains of living organisms that lived millions of years ago. Fossil fuels हम उन fuels को कहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से बनते हैं, उनकी डेड बॉडी से बनते हैं। और वो एनिमल्स, प्लांट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले रहते थे और उनकी बॉडी से ये फॉसिल फ्यूल्स बने हैं।
Now examples of fossil fuels are coal, petroleum, natural gas. These are fossil fuels. So fossil fuels, coal, petroleum, natural gas. Okay, these are the fossil fuels. कोल प्लांट से बनता है, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम जो है एनिमल्स के डेड रिमेन से बनते हैं. Now in this chapter we will deal about exhaustible natural resources. So the first exhaustible natural resource is coal. Okay, now coal. Properties of coal. सबसे पहले it is a black colored substance and as hard as a stone. Okay, it mainly consists of carbon. Coal is mainly consists of carbon. It burns in the presence of air and produces carbon dioxide gas and heat. When coal burns, it produces carbon dioxide, heat and gas. It is a combustible substance. Which means it can be burned. Hence, it is used as a fuel to cook food or to heat up the room. Okay. It was also used in steam engines earlier to produce steam to run the rail engines. Okay. It is earlier coal was also used to run steam engines. So these are the important properties of coal. Now how coal is formed? Coal is formed by the burial of the forest under the soil due to earthquakes, landslides and flooding. As soil deposited over them, they were pushed deeper and deeper in the soil and got compressed. Then due to high temperature and pressure and absence of air, the dead plants got slowly converted into coal after millions of years. And this slow process of conversion of dead plants into coal is called carbonization. This process is called carbonization. The process of formation of coal from the dead plants is called carbonization. कार्बोनाइजेशन प्रोसेस क्या है? कोल बनने का जो प्रोसेस है, कोयला बनने का जो प्रोसेस है, वो कार्बोनाइजेशन कहलाता है. क्या हुआ था स्टूडेंट्स? कोल कैसे बना? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट्स ज़मीन पे थे, कोई भी नेचुरल कैलिमिटी आ गई, जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या फ्लड आने से ये प्लांट्स जो हैं ज़मीन के नीचे दब गई. एज द सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और उनके ऊपर सॉइल इकट्ठी होती गई और वो नीचे नीचे ज़मीन में दबते चले गए प्लांट्स, और नीचे नीचे वो कॉम्प्रेस होते गए. ओके. और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण, क्योंकि ज़मीन के नीचे वो दबते चले गए, दे फेल्ट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो उनको हाई टेम्परेचर उनको लगा और हाई प्रेशर भी उनको वहाँ पर फील हुआ, और वहाँ पर एयर भी नहीं थी. इन द एब्सेंस ऑफ एयर नहीं थी और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर था. तो ये डेड प्लांट्स स्लोली कोल में कन्वर्ट होते चले गए. ओके. मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा इस पूरे प्रोसेस को. इट इज़ नॉट अ क्विक प्रोसेस कि कुछ दिनों में कोयला बन जाएगा, प्लांट्स को हम दबा देंगे. नो, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स. Okay, and this slow process of conversion of dead plants into coal is called carbonization. Okay, वो प्रोसेस जिससे डेड प्लांट्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं. सो कोल इज टर्म्ड एज फॉसिल फ्यूल्स एज इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स. क्योंकि डेड प्लांट्स के रिमेन से बना है कोल, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. नाउ द यूज़फुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोल. कोल से हमें क्या क्या यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. व्हाट आर द यूज़फुल प्रोडक्ट्स ऑफ कोल? नाउ देयर आर 3 मेन प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. द मेन प्रोडक्ट्स obtained by the processing of coal are coke, coal tar and coal gas. These are the important, we can say, products which we get from coal. Okay. Now first of all, coke is a tough, porous and black substance.
It is a tough, porous and black substance, coke. It is the black substance obtained after heating coal in the absence of air. Okay, it is a black substance which is formed by heating coal in the absence of air. कोल को ऑक्सीजन के बिना गर्म करने पर कोक बनता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है. नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. ये कार्बन की प्योर फॉर्म होता है. कोक इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. Now coke is a better fuel than coal because it produces more heat on burning and does not produce much smoke. क्योंकि इससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और स्मोक भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए ये कोल के कंपेयर में एक अच्छा फ्यूल माना जाता है. Now what are its uses? The coke is used in the manufacture of steel and it is used in the extraction of many metals. स्टील बनाने में कोक का यूज़ होता है. स्टील बनाने में जिनके बर्तन और बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, दैट स्टील. सो कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में भी, प्योर फॉर्म में मेटल्स ऑब्टेन करने में भी कोक का यूज़ होता है. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कोल. नाउ कोल तार. The next important substance or the useful product of coal is coal tar. It is a thick black liquid with an unpleasant smell. Okay, it is a thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of several substances. Okay, it is a mixture of several substances. It is the residue obtained by heating coal in the absence of air. ये एक रेजिड्यू है, बाई प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो कि कोल को गर्म करने पर, ऑक्सीजन के बिना गर्म करने पर कोल को ये हमें मिलता है. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें ये मिलता है. नाउ कोल तार इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. ओके. Now, where it is used? Coal tar is used for the manufacture of dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, naphthalene balls, roofing material, etc. इन जगहों में कोल तार का यूज़ होता है. डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में, डिफरेंट तरह के केमिकल्स, मेडिसिन्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में भी इनका यूज़ होता है. परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स, नैप्थेलिन बॉल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स में कोल तार का यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द सरफेसिंग ऑफ रोड्स, कोल तार. ओके, nowadays a petroleum product bitumen is used for surfacing of roads. Prior कोल तार was used. पहले कोल तार का यूज़ होता था सड़कों को की सरफेसिंग करने में. आजकल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटुमिन, उसका यूज़ होता है. सो दीज ऑल आर द यूजेज ऑफ कोल तार. ठीक है. नैप्थेलिन बॉल्स बनाने में भी इसका यूज़ होता है, जो कि मॉथ और दूसरे इंसेक्ट्स को रिपेल करता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ कोल इज़ कोल गैस. कोल गैस, इट इज़ ए गैशियस फ्यूल. इट इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोल को गर्म करने से कोल गैस मिलती है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली मीथेन विथ सम कार्बन मोनोऑक्साइड. कोल गैस में एक्चुअल में क्या होता है, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है. मीथेन, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली मीथेन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड. मीथेन CH4 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO. ओके, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड. इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट बर्न्स. बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जब कोल गैस को बर्न किया जाता है. ओके. नाउ वेयर इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़. फ्यूल के रूप में इसको स्पेशली यूज़ में लिया जाता है. स्पेशली इन कहाँ, किस इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ होता है? स्पेशली विच आर सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उन इंडस्ट्रीज़ में कोल गैस का यूज़ होता है. ना जब कोल गैस को बर्न किया जाता है तो अच्छी अमाउंट में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. सो हैंस कोल गैस वाज यूज्ड फॉर
street lighting in London in 1810. ओके 1810 में लंदन में जो स्ट्रीट लाइटनिंग में जो कोल गैस का यूज़ होता था, सो इट वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग अर्लियर in London and New York, we can say, because when it burn it produces a good amount of light along with heat. हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस करता है जब कोल गैस बर्न होती है, तो इसलिए इसका यूज़ पहले लाइटनिंग में भी होता था. सो स्टूडेंट्स, so these all are the uses and we can say different fields in which these important products of coal are used. So try to understand all these topics and learn them. Okay students, thank you.